Hello students, in this part I will discuss about the windpipe or trachea. Glottis opens in trachea or windpipe. The proximal part of trachea is larynx. So at first I will discuss about larynx and then I will start trachea. So the first part is larynx. Larynx is commonly known as voice box. You all know this term, voice box or sound box or sound box. तो ये ऐसे हमारे पास ये ग्लॉटिस था, ये ग्लॉटिस इस तरह से ओपन हुआ और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन हुआ. अपर पार्ट ऑफ दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज लैरिंक्स. This larynx is made up of cartilage. This larynx is made up of cartilage. Different types of cartilage are present, which forms the larynx. For example, it contains thyroid cartilage, epiglottis is extension of thyroid cartilage, cricoid, uniform, arytenoid, etc. डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज से इसका फॉर्मेशन होता है और इस लैरिंक्स के पास दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. दीज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन लैरिंक्स, ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर लाई करता है. एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री पर लाई करता है. तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि सपोज दिस इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पर ऐसे लगभग ये 90 डिग्री पर लाई करता है, जिसके कारण ये बीच का जो ट्यूब के अंदर ऐसे 90 पर लाई करेगा तो बीच का जो एरिया ये ओपन होगा, खुला होगा, जिससे वो करके एयर हमारा बिना हिंड्रेंस के अंदर एंटर करेगा. सो यहाँ पर जो 90 डिग्री पर ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, दिस मेम्ब्रेनस structures are called, these are called vocal cords. These are called vocal cords. There are two vocal cords which are present in this larynx. First is upper and second is lower. Second is lower. Upper is called false vocal cord and lower is called true vocal cord. This is called true vocal cord. Both the vocal cord helps in production of sound. So कैसे sound production होता है ये सुनते हैं. तो जब inhale करते हैं एयर को, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब एयर बाहर निकलता है तो ये बाहर निकलता है तो ये इस वोकल कॉर्ड को स्ट्राइक करता है. ठीक है, ये वोकल कॉर्ड को जिस वक्त स्ट्राइक करता है उस वक्त यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं जो इसको खींचते हैं, खींच करके इसको ऐसे एक दूसरे के सामने लाते हैं, जिसके कारण जब एक्सहेल्ड एयर बाहर निकलता है तो ये एक्सहेल्ड एयर लोअर वोकल कॉर्ड, अपर वोकल कॉर्ड, ये लोअर वोकल कॉर्ड को एयर जब स्ट्राइक करता है तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. When it starts vibrating, it strikes the upper vocal cord, which is false vocal cord. Due to vibration of both these vocal cords, a vibrating sound is produced, and this vibrating sound is converted into speech with the help of our tongue and lip movement. So it helps in speech production, hence it is called a sound box. So vibration जो कि लोअर वोकल कॉर्ड ने शुरू किया था, एक्सहेल्ड एयर जब निकला था तो लोअर वोकल कॉर्ड को स्ट्राइक किया था, जिसके कारण लोअर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करना शुरू किया. ये स्ट्राइक किया अपर को, दोनों साथ मिलकर वाइब्रेट किए और ये वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ और ये साउंड हमारा
वर्ड और सेंटेंस में तब कन्वर्ट हुआ जब आपने इसके साथ साथ टंग और लिप का मूवमेंट किया। ओके, सो द लोअर vocal cord vibrates when exhaled air comes out. Exhaled air comes out due to vibration. Due to vibration, it produces sound. So it is commonly known as true vocal cord. This sound is converted into speech. Due to lip and tongue movement. This vibration is converted into speech due to lip and tongue movement. Converted into speech due to lip and tongue movement. ओके, तो ये था हमारे पास लैरिंक्स। आफ्टर लैरिंक्स नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया और विंड पाइप। सो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया और wind pipe. It is again cartilaginous structure, and this wind pipe or trachea. This wind pipe or trachea is divided into two main parts at the level of fifth thoracic vertebra. We have approx 26 vertebrae in our vertebral column. In adults, approx 26 vertebrae are present, and in children 33 vertebrae are present. तो हमारे पास जो वर्टिब्रा है उस वर्टिब्रा को हम लोग डिवाइड करते हैं। पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन होता है जो इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करता है, जिसके अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो अपर इज सर्वाइकल, नेक के पास जो वर्टिब्रा होता है सर्वाइकल होता है, फिर थोरेसिक होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रल होता है, फिर कॉक्सिजियल होता है। ठीक है, तो हमारे पास सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12। तो उस सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12 में से फिफ्थ लेवल पर यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर सामने से ये ट्रैकिया डिवाइड्स at the level of fifth thoracic vertebra. At the level of fifth thoracic vertebra, and forms two branches, right primary bronchus and left primary bronchus. The point of division of this trachea is known as carina. This is known as carina. Now, the primary bronchus enters in our lungs. ये प्राइमरी ब्रोंकस अब हमारे पास लंग्स में एंटर करता है। ठीक है, दिस ट्रैकिया इज प्रोटेक्टेड बाय और इट इज सपोर्टेड बाय अप्रॉक्स 16 to 20 this C-shaped ring-like structure, and this C-shaped ring-like structures are actually cartilaginous rings
which protects the trachea from collapsing. So ट्रैकिया एक कार्टिलेजिनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस कार्टिलेजिनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कोलैप्सिंग से सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए इसके पास सपोर्टेड होता है. ये लगभग 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स है जिसको कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं. और ये ट्रैकिया हमारे पास फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर डिवाइड करके प्राइमरी ब्रोंकस का फॉर्मेशन करता है. और ये प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स में जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज जिसमें होकर के एंटर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइलम और हेलस. इस ओपनिंग से होकर ये प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करता है हमारे लंग्स में. सो व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया कार्टिलेजिनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which divides, उधर तो लिख ही दिया है तो हो गया, उधर लिखा हुआ कार्टिलेजिनस ट्यूब लाइक